it is a very, very special, the mystery behind why the case is not getting solved, why there is no judgment coming, why there is no anything coming out of it, why this is so suspicious, who all are involved. We don't know. We have so many theories. We have so many people have evidences. Those evidences are not with the authorities to come to some conclusion. This is also a mystery how it is possible. So many things, so many things which are not yet come out. Some people are aware about it, but these things are not easily available to anyone else. And the question is why our authorities who are involved to solve this case are not able to solve this case when the evidences are available with the people. There are eyewitnesses. There are. I just saw the interview of that Cooper Hospital's mortuary guy who has now come out and said he has seen the marks on his body, which were, and he assured that it was not a suicide case. It was certainly a murder case. So, who was behind it? Why it is done? A simple guy, studious guy, इंटेलिजेंट पर्सन जो एक सपने के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा था, अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसने एक सपना सजाया, उस सपने को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में आया और प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ मुझ में है दम, मैं नहीं हूं किसी से कम. तो किसको प्रॉब्लम थी उनके दम पे? किसको प्रॉब्लम थी कि उनका सिंहासन हिल जाएगा? किसको दम थी कि इसकी वजह से इनकी रोटी में आंच आ जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हमारे साथ बहुत सारे वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने पैशनेटली इस केस को अभी तक नहीं छोड़ा है. बहुत से लोग, मेरे जैसे लोग, अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एजेंसीज क्या कर रही हैं या गवर्नमेंट की ओर से क्या कोई स्टेटमेंट आ रहा है या कुछ आ रहा है. बट कुछ ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इसको अपना जीवन और लाइफ का क्वेश्चन बना के रख लिया है. दे लिव विद इट. They every time they talk about SSR, they talk about the associated things, whatever happened to that time. They go deep and deep into the case, and they want to find what is the why this mystery is not getting solved. बहुत कुछ मन में गुस्सा भी है, क्योंकि जब हमें दिखता है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो अगले को क्यों नहीं दिखता है कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस है. व्हाई देयर आर सो मेनी ग्रे शेड्स विद दिस केस. तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे. री, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. धर्मा जी, स्वागत है आपका. आपको होस्ट ले लीजिए. और धर्मा जी हमारी टीम से हैं. हम लोग आज ये केस में मैं और धर्मा जी चाहेंगे कि हम कम से कम बोलें. और री, ये जो आज की इस बस का जो हैंडल है मैं आपको देती हूँ, स्टेयरिंग. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. एंड इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि जिसके पास इस केस की जितनी ज्यादा डिटेल है, प्लीज माइक लीजिए, आइए ऊपर शेयर करिए हमारे साथ, और एक छोटा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या एक्चुअल, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, बहुत से लोगों के दिमाग से कुछ चीजें इधर उधर हो गई हैं. तो एक उनको वापस रिकलेक्ट करते हैं, वापस लेट्स गो एंड रीलिव दोज मेमोरीज जो री हमारे साथ शेयर करेंगी. एंड उसके बाद वी विल गो फर्दर, वी विल टेक क्वेश्चन, वी विल डू द ब्रेन स्ट्रोमिंग ऑन द केस कि क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या हो गया, क्यों हो गया. बहुत कुछ है जानने के लिए. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एंड सॉरी, मैं अपने आप को यहीं पर रोकती हूँ, बहुत बोल रही हूँ. री के पास चलते हैं. वेलकम री. Thank you so much, Andy and Diva ji. आपको मैं ऐसे ही बुलाऊं or should I call you with You something can call else? me Diva ji, that's also fine. Okay, Diva ji. Thank you so much for doing this for us, Diva ji. It really means a lot to all SSR warriors. And welcome everybody. It's wonderful seeing all of us here. And Diva ji, there is so much to this case we have seen and heard in these 3 years. And like we're SSR warriors and we haven't stopped. We trend daily for 3 years on Twitter. If you have seen that, our hashtag is always there. And then all the warriors like me and others, we are talking daily about this case. So many aspects, so many things are there. So without further ado, I would request all my warriors, all my fellow warriors, to please give a brief intro in the case and then we'll proceed. Thank you so much, Divaji. Really, thank you for doing this space. Yes, hello Professor, how are you? I'm good, Ree, and thank you, Divaji, Dharmaji, and
Ray, to you as well, and a warm welcome to each and every one of you. And as Ree said, that it's been 3 years that's been in this journey, our fight for justice for Sushant Singh Rajput. But I really wanted to start today with telling you people who was Sushant Singh Rajput. Sushant Singh Rajput was just like you and me. He's an ordinary boy from a middle class family who dared to dream, who dared to fulfill his dreams. An ordinary boy who was pursuing his engineering. In those days, in his college, he had a dream he wanted to fulfill and he wanted to become an actor. So he quit his engineering to pursue his dream. Now, this is not an easy step. Anyone going, you know, uh, going forward with his dream and, suddenly decides to take time out and pursue his dreams. He dared to do that. He started off being a background dancer in Shamak Dhawan group. From background dancer, his journey started. He went to television. He did very well in television. He moved to movies. And from a very little time, he rose to stardom. He was quite famous. He was one of the best actors, gave wonderful movies until the unfortunate day, 14th June 2020, when we lost the Star Boy. Now, what exactly happened on the 14th of June 2020? But before that, if we look at this case very, very बारीक से देखेंगे इस केस को तो हमें समझ आएगा that the family of Sushant Singh Rajput had already filed in for a request that his life is in danger, and that happened in the month of February 2020. The brother-in-law of Sushant Singh Rajput, Mr. O.P. Singh, had a word with his, colleague in Mumbai, who's also a police officer, Inspector Dhaia, and he categorically said that Sushant's life is in danger and he needs some kind of protection. Mumbai police actually ignored that request, citing that a proper complaint needs to be registered. They completely ignored it. Now, this happened in February 2020, ladies and gentlemen. Now, moving forward, what transpired is on 14th of June 2020, there was a call made to the police department that an unfortunate incident has happened at Mont Blanc, where SSR resides. On approaching Mont Blanc, the police found the body lying on the bed. Now, why do we say that this is a very important piece of evidence? The police did not see the body hanging. And within a few minutes, our officer, Mr. Manoj Sharma, spoke to the media declaring that Sushant Singh Rajput has taken his life. In other words, Sushant Singh Rajput committed suicide. And the news just flashed like a fire. And everybody started believing until the pictures and certain videos came in view. And when we watched, to our shock, to our utmost shock, we saw the first thing, a ligature mark on the body of Sushant Singh Rajput. Now, what is a ligature mark? A ligature mark is something, if a person is hanging, the ligature mark becomes a V shape. V shape की तरीके से वो आ जाता है. But if you look at the ligature mark on Sushant Singh Rajput, it is of O mark. That means that Sushant was strangulated, but he was never in a hanging position. Even if you look at his weight and the fan, you will notice that a man who has 80-85 kg of weight is hanging from a fan, but the blades and just does not turn, just does not bend an inch. Even if we talk about the distance between the fan and the bed, now Sushant's height was 6 feet, or in other words, we can say 183 centimeters. And the distance between
pen, and the bed is 5'11". So how do you actually match that? So our entire debate today is about these things. And to be really honest with you, our debate is also by the botch up and the conspiracy which is done by the cabal and Mumbai police. It's not only it's not only the ligature mark, but as rightly said by Divaji, that when the body was taken from Mont Blanc, it was taken in such a hurry. Being a Sunday, they did not wait for the COVID protocols. They were in such a hurry that same day the body was taken to Cooper Hospital. The same night, doctors were called for a quick postmortem overnight. Now, that calls for something fishy, definitely. But I'm not saying it. There is a witness which comes out after 1.5, 2 years, Roop Kumar Shah, who states, and Roop Kumar Shah, part of the postmortem team, which states that Sushant Singh Rajput had injury marks on his body, right from his eye to his leg. He had a fractured leg. And he also states that the ligature mark on his neck is not of hanging at all. Ladies and gentlemen, this is that man who has given 28 years of service, over 60,000 bodies he has done postmortem. Now, isn't this guy the prime witness of the case? Our fight for justice is all about this. So I'll just stop here and allow other speakers also to put in their inputs, and I'll come back. Thank you. थैंक यू द प्रोफेसर, आई रियली अप्रिशिएट आपने इतनी अच्छी तरह से इसको समझाया. रिक्वेस्टिंग एवरी स्पीकर, अगर हो सकता है तो लेट्स मेक इट इन हिंदी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, कुछ एक दो मैसेजेस आए हैं जिनको कंसर्न है कि वो टेक्निकल पॉइंट्स को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो लेट्स मेक इट इन हिंदी ताकि सब समझ सकें, बिकॉज वी ऑल आर हियर फॉर वन थिंग, टू अंडरस्टैंड एंड टू गेन समथिंग फ्रॉम इट. धर्मा जी हमारे को होस्ट हैं. मैं जी धर्मा जी आपसे जी रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट. जी दीवा जी, थैंक यू सो मच. वेलकम री एंड एवरीवन. मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर हैं अभी, स्पीकर्स, लिसनर्स, वो स्पेस की जो लिंक है उसको रीट्वीट कर दे, कि जो अदर फैंस भी हैं वो भी इस बात तक पहुंच सके, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, शायद रिमाइंडर नहीं मिला, वो भी आ सके. और मैं क्या कहूँ, मेरा एक कनेक्शन है, नहीं होते हुए भी मेरा एक कनेक्शन है. वो कनेक्शन किस तरह से बिल्ट हो रहा है, आई डोंट नो. सब लोग बिलीव करते हैं कि डेस्टिन्ड होती है, कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं. इट इज ऑल पूरा एक सर्कल बनाया जाता है, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. यू नेवर नो हाउ इट हैपेंस, बट देयर इज सम सुपर पावर दैट डज इट. व्हेन आई लुक एट द मूवी एम एस धोनी, मुझे लगता है दिस गाय वाज came on earth to play the role of that guy. When I was looking at the story behind the scenes, those documentary regarding that, and all the interviews which came later on and during the promotion of the movie, I realized how much he worked on. Wैसे I have been playing cricket, but to enact or just copycat this character, somebody like Dhoni, which was so active those days. He was, it's not that he was retired, he was just playing as a player, and he was at his prime. And this guy, SSR, played the role of that person, and it's, you don't really know the difference in the shots, the mannerism, the walk. और मैं एसएसआर को अपनी जो जितनी भी मेरी मेमोरी है अभी तक, जो भी मैं उसको वहां से शुरू करता हूँ. जब फर्स्ट टाइम मैंने ये गाना, आई वाज एट द kitchen, and me and my brother were cooking something, and my brother, it was just छोटा है मुझसे वो, he started mumming this song, उलझा लेंगे खुसरो का मांझा, वो मांझा मांझा सॉन्ग गा रहा था वो. मैं बोला भाई कौन सा गाना है, वो ही was just humming that, and then थोड़ा थोड़ा पीक में है उसको, just it's so much of good vocals out there. मैंने कौन सा मूवी है, बोला आपने नहीं देखी, मैंने नहीं भाई क्या मूवी है ये, काई पोछी. देन आई गॉट ए चांस, वो मूवी आई टेलीविजन पे, मैंने देखा, एंड देन आई डिस्कवर्ड सुशांत. उससे पहले मैं सुशांत को नहीं जानता था. आई वाज नॉट मच इनटू टेलीविजन और मूवीज एट ऑल. मैं साल में एक मूवी भी मुश्किल से नहीं देखता हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल. बट वो मैंने मूवी देखी थी विथ लॉट ऑफ एड्स ऑल्सो, एंड
सो मतलब इम्प्रेस था मैं उस मूवी से. एंड I had a creative company. वहां पे I found a guy when we used to run this song for a long time. मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. And when this thing came in, I we came to know a lot of thing about it. And one of those aspects was कि वो astrophysics वगैरह में, और he was अच्छे इंजीनियर था. वो एक इंजीनियर बन सकता, साइंटिस्ट बन सकता था, एस्ट्रोनॉट बन सकता. आई डोंट नो, देयर वाज सो मच ऑफ पॉसिबिलिटी. एंड वो एक्टर बनने के बाद भी ही वाज कीपिंग अ टेलीस्कोप एंड ही हैड अ प्लान टू गो टू नासा एज वेल. एंड आई थिंक ही वेंट इन वंस ही विजिटेड नासा एज वेल. आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर ही विजिटेड और नॉट, बट ही उन्होंने लैंड भी खरीदी थी अदर प्लेसेस पे. एंड व्हेन आई लुक एट अभी 2023 में, व्हेन आई लुक एट इट कि जो मून मिशन अभी चंद्रयान का हुआ है, my heart bleeds with this feeling that he has not been able to witness it. But I'm sure wherever he is, he must be looking at this. And ये सन मिशन हो रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा मैम कि ही वाज जस्ट ए जेम ऑफ अ पर्सन. प्लस जो मैं कनेक्शन बोल रहा था कि मेरा ससुराल रांची हुआ करता था, धोनी वॉज फ्रॉम रांची. एंड दिस गाय, ऑल्दो रांची इज नॉट और इज झारखंड, बट इट इज अ बिगर बिहार इन एनी केस. सो ये बिहार से कनेक्शन है. आई ऑल्सो कम फ्रॉम बिहार. एंड माई मॉम यूज्ड टू से कि डेरी बिहारी है ये लड़का. तो वी यूज्ड टू फील रियली, मतलब क्या बोले, इमोशनल कनेक्ट होता है. जस्ट लाइक आज ईशान किसान ने एक अच्छा स्कोर किया, वी फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट इट. ईशान किसान आल्सो कम फ्रॉम बिहार. इंडिया पाकिस्तान मैच में परफॉर्म कर रहा है. तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा. एंड लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली जैसा दीवा जी ने कहा कि समय हो चुका है. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट ट्रैक कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड एंड अभी क्या चल रहा है एंड व्हाई द जस्टिस इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू हिम. So thank you so much, and I request everyone to share this space link as well. थैंक यू वेरी मच धर्मा जी. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें अभी रखे हैं. तो रीड द स्टेयरिंग इज इन योर हैंड. आई मीन यू आर होल्डिंग द स्टेयरिंग, सो प्लीज लेट्स मूव. थैंक यू धर्मा जी, आपने इतने वंडरफुल मेमोरीज एंड स्टोरी शेयर किया. इट वाज सो ग्रेट टू हियर. सुशांत वाज समथिंग एल्स. The things he was doing for the country, taking it forward. And if you know, he was also member of Niti Aayog, working for women and children education and development. That's the person we're actually fighting for, not the Bollywood superstar. It's the actual person and who he stood for, you know, what he stood for. That's what we're fighting for. बहुत अच्छा लगा सुन के धर्मा जी. अभी आई थिंक प्रोफेसर जी का हैंड रेज हुआ है, उसके बाद फिर मैं नीतू नानी जी, आई कम टू यू. थैंक यू दीवा जी, धर्मा जी. अब मैं हिंदी में बात करूंगा थोड़ा, जितना भी कर सकता हूँ. बीच में इंग्लिश भी थोड़ा झाड़ दूंगा. तो इट्स परफेक्टली फाइन. साथ साथ चलेगा समाज की सर, सबसे अच्छा. इंग्लिश चलेगा प्रोफेसर हाँ. जी, इंग्लिश इंग्लिश, चलेगा, या इंग्लिश हमारी ओके. चलेगा. प्यारी लैंग्वेज जो सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, इंग्लिश प्लीज. Yes, yes, yes. As Dharma Bhai said, and he stole my words. इन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत नासा के लिए गए. बिल्कुल सही कहा. I just want to say that, भाइयों बहनों, he is the only actor to go to NASA and do exercise there 2 times in one go. एक ही एक्सरसाइज, एक ही ट्रेनिंग, एक ही टाइम 2 बार करी. And the only Indian actor to go. Lot of actors have visited NASA, but the training सिर्फ इस लड़के ने, सुशांत सिंह राजपूत, ने करे. भाइयों बहनों, मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं. 14 जून को जब पुलिस माउंट ब्लैंक पे पहुंची, तो उनकी एक टुकड़ी गई ऊपर क्राइम रूम में और एक टुकड़ी नीचे, जिन्होंने स्टेटमेंट दी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली है. Without any investigation, without even the forensic reaching the crime spot, without even the doctors present who can declare whether the person is alive or dead. Within 15 to 20 minutes, it was decided that Sushant took his own life. A man who had so many dreams. एक आदमी जिसने सिर्फ ड्रीम नहीं करा, उसने उन अपनी ड्रीम्स को अचीव भी करा और करते गया और करना चाहता भी था. एक आदमी who was a advent writer,
who used to write each and everything. Over 18 to 20 diaries, ladies and gentlemen. अगर उसको कोई काम करना होता है तो वो पहले से ही तैयारी कर लेता है, एक टू डू लिस्ट बना के, हर एक चीज लिख के करना उसने, हर एक चीज। और ये कहते हैं कि ऐसे शख्स ने किसी को फोन तक नहीं करा, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, और इस संसार को छोड़ के चला गया। Isn't it a foul play? Isn't it a conspiracy? I, I personally feel it's a conspiracy. And what followed after that? You'll be shocked to know. आप सब गूगल करिए और कोशिश करिए कि 14 जून से पहले आपको कोई आर्टिकल ऐसा मिल जाए जहां पर सुशांत के बारे में जो इन्होंने लिखा है कि सुशांत को डिप्रेशन था, बाइपोलर था, या फिर वो कोई ड्रग्स लेते थे, ऐसा कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। बट द मोमेंट दिस न्यूज फ्लैश्ड, everybody from the Bollywood industry to bureaucrats to ministers started tweeting, started posting videos. The corrupt former minister of Mumbai, the home minister of Mumbai, Anil Deshmukh, the very next day, जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म हुआ, वो he made a video and he said that Sushant had some differences in Bollywood, that's why he took his own life. On the 15th, ladies and gentlemen, अभी तक फॉरेंसिक टीम भी नहीं आई है मॉन्ट ब्लैंक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखा हुआ है एपिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, नो मेंशन of anything on his body, no injury marks on his eye, his broken leg, and all the injury marks all over his body. Nothing is mentioned, which makes me believe कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इसको बैक करने के लिए उनको चाहिए था एक लीगल डॉक्यूमेंट, एंड दैट लीगल डॉक्यूमेंट, what else than a medical opinion. बट वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। उन्हीं की टीम से जिन्होंने पोस्टमार्टम करा है, एक आदमी सामने आ गया, रूप कुमार शाह, जिसने सारा खुलासा कर दिया। उसने ये भी कहा कि जब मैंने उनको बोला कि ऑडियो वीडियो ग्राफी क्यों नहीं हो रही पोस्टमार्टम की, तो डॉक्टर हु वाज प्रेजेंट देयर, the head of the department, he denied. Only pictures were taken, but audio video was denied. And I want to know why. What was they in such a hurry to finish it off and then say that the cremation of the body should happen on the 15th itself? The body was given to the family, but with conditions. कि आपने कम्युनिकेशन, आपने अपने सिटी में नहीं ले जा सकते बॉडी, citing COVID protocols, but the body needs to be cremated on the 15th. Isn't it strange? I feel this is quite strange. Over to you, Ree. Thank you, Professor. आपने शेयर किए all the details and I'm sure a lot of people can also revise and रिफ्रेश भी हो जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट सो मच प्रोफेसर। अब मैं नीतू नानी जी के पास जाती हूँ। दीवा जी, नीतू नानी जी बहुत स्पेशल वॉरियर हैं इन आवर मूवमेंट। शी इज़ एक्चुअली अ ग्राउंड वॉरियर। वो प्रोटेस्ट करती हैं एवरी मंथ एंड अभी उनसे सुनते हैं। नमस्ते नीतू नानी जी, जय श्री राम, हाउ आर यू? नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस स्पेस स्पेशल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चा, आपको नमस्ते, प्रणाम सबको मेरा। और मैं आप सबका, बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक्स कहती हूँ आप सब बच्चों को जो आप सुशांत के लिए ये सिर्फ फाइट हमारे सुशांत के लिए नहीं है,
ये फाइट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए है। आज अगर सुशांत को जस्टिस ना मिला ना, तो ये सब बातें आगे भी होती रहेगी। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप सब बच्चे मिलके हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो। और आप सब बच्चे इतना इतना मतलब टोटली पीएचडी कर ली है आप लोगों ने सुशांत, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत जब सुशांत के लिए बात करती हूँ सुनती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आज 3 साल हो गए हैं। मैं सच कहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सो भी नहीं पाई हूँ। जब तक मैं सुशांत के केस के बारे में सुनती या पढ़ती नहीं हूँ या उसके ट्वीट्स नहीं देखती हूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती। बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं कि माँ इतना इमोशनली मत हो किसके साथ, आप अपनी हेल्थ खराब कर दोगे। लेकिन मैं प्रेयर्स में बिलीव करती हूँ और मुझे पता है और कोई न सुने, ऊपर वाला जरूर हमारी प्रेयर सुनेगा और वो सब आप बच्चों को इतनी ताकत और शक्ति देगा कि आप सब लोग मिलके सुशांत के जस्टिस के लिए बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। और सुशांत को और जो भी अदर प्योर सोल्स हैं, दिशा जिया, और जिसके बारे में हमें पता पड़ा कि सुशांत के बाद उनके भी 20-22 मर्डर्स हुए। और मैं तो ऑन द रोड जाके चिल्ला के बोलती हूँ, यस सुशांत वाज मर्डर, यस दिशा वाज मर्डर, यस जिया वाज मर्डर। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे आके लेके जा सकते थे, लेकिन अगर वहां पे वो मानते हैं कि हम झूठे नहीं हैं, हम जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और मैं सब एजेंसी से भी मांगती हूँ, ट्वीट में भी मांगती हूँ। बाकी बच्चों के पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो हमें मीडिया की तरफ से मिले हैं। हमारे बच्चों ने खुद नहीं बनाए हैं ये प्रूफ्स, ये हम लोगों को मीडिया ने ही दिए हैं। जो पहले बहुत बात करती थी, लेकिन आई डोंट नो क्या बात हुई कि पॉलिटिशियंस ने मीडिया का भी आवाज बंद कर दिया, सबको मना कर दिया सुशांत के लिए बात करने के लिए। तो मैं भी बस यही बोलती हूँ, हु, व्हाई, व्हेन, व्हाई ही वाज किल्ड। बस मेरा यही सवाल है, क्यों उस बच्चे को ऐसी मौत दी गई। थैंक यू बेटा फॉर गिविंग मी माइक, मैं सुनूंगी, आप बच्चे बात कीजिए। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है। थैंक यू, मैं सिर्फ प्रेयर्स कर सकती हूँ, दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच नीतू जी। आपकी प्रेजेंस ये बताती है कि बाकी सब लोग जो चाहते हैं, जो जस्टिस चाहते हैं, जब आप जैसे लोगों का सहयोग होता है तो पता चलता है कि सब लोग सही ट्रैक में हैं और आगे इसमें बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जस्टिस हमारा वेट कर रहा है। मैं अमित भाटिया जी का स्वागत करूंगी। अमित जी हमारी टीम है, हम लोग एक ही टीम से हैं। द टीम न्यूज अवर फाउंडर हैं, को फाउंडर मेरे साथ। तो Amit ji, could you please share something? Would you like to speak now? जी नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आई थिंक ये टॉपिक जो है, एक एक वी हैव लिव्ड थ्रू दैट टॉपिक। काफी कुछ इसके बारे में आया, काफी कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई मीडिया में। और जो ट्रायल्स हुए थे, आई थिंक उसमें भी हमने देखा कि एटलीस्ट उस समय की जो महाराष्ट्र सरकार थी, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल किया था। आई मीन ऑफ कोर्स यू नो मच मोर देन मी, क्योंकि आई वाज जस्ट एन ऑडियंस एट दैट टाइम। उसको हम जस्ट ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे थे। वी वर नॉट फॉलोइंग दैट मच ऑन सोशल मीडिया, एटलीस्ट आई वाजंट। तो आई मीन आई वुड बी मोर ऑफ अ लिसनर हियर फॉर श्योर, क्योंकि जो आपके पास नॉलेज है वो बहुत इन डेप्थ है। बट आई मीन मेरा आपसे भी ये प्रश्न होगा कि अगर इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर या बताना चाहें इस पे कि आई मीन व्हाई वी हैवंट रीच्ड अ कंक्लूजन ऑन दिस वन अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि क्या हमें लगता है कि द proofs are not sufficient, या फिर there are missing links from the proofs? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि अगर हम सिर्फ सरकार को ब्लेम करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि why they are not doing it.
So that's where I would like you to also tell us के क्योंकि आपको इतना in depth पता है in इस case का, then you can also perhaps point out to the right solution for the government to go ahead, or what is the, if there is any compulsion, tell us. I mean, these are the areas where we think it could be. So yeah, just want that kind of a maybe if you could respond to that, maybe yeah. Re SSR warrior, if you if you would like to comment on that. जी, जी। नमस्ते, नमस्ते अमित जी। थैंक यू आपने स्पेस किया ऑन I'm रिक्वेस्ट ऑफ सुशांत वॉरियर्स। बहुत अच्छा लगा एंड सो मेनी पीपल हैव जॉइन्ड। सो हेलो टू ऑल द अदर पीपल। आई थिंक ऑलमोस्ट 100 प्लस हो गए। सो आपको सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। एंड अमित जी, जो आपका क्वेश्चन है, इट इज़ सो लोडेड एंड देयर इज़ सो मच वी कैन टेल यू ऑन दैट। और मैं आपको इतना बताती हूँ अमित जी, द साइंस वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट दैट इट्स अ मर्डर। इवन व्हेन सीबीआई केम इन, बस डिसअपॉइंटमेंट ये है अमित जी, थोड़ा एक ग्राइप है दैट कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं हुई। व्हेन इट केम आउट, फ्लैटमेट्स की स्टोरी मैच नहीं हो रही। कोई बोल रहा है सुशांत ने ऑरेंज जूस पिया, कोई बोल रहा है सुशांत ने पोमोग्रेनेट जूस पिया, कोई बोल रहा है सुशांत ने ये किया। सुशांत वाज फेसिंग द डोर, समवन सेड व्हेन आई ओपनड द डोर सुशांत वाज फेसिंग द वॉल। किसी की स्टोरी मैच नहीं कर रही। व्हेन द सिस्टर लेफ्ट, सुशांत की जो सिस्टर थी, जब वो 12 जून को गई टू अटेंड टू हर डॉटर, उन्होंने बोला 4 सर्वेंट्स को इन द होम, सुशांत का कुछ भी हो लेट मी नो, प्लीज कॉल मी, मैं फौरन आ जाऊंगी, आई कम इमीडिएटली। उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई कॉल नहीं। इफ दे आर सेइंग दैट हिज रूम वाज क्लोज सिंस मॉर्निंग एंड ही वाजंट ओपनिंग, उन्होंने सिस्टर को कॉल नहीं की until unless the sister called them and asked where is Sushant and why is he not answering his phone. So that is also something that happened अमित जी। फिर जब रूप कुमार शाह जी, आपको पता होगा मॉर्चरी अटेंडेंट जो आए थे, वो मीडिया में एक बज हुआ था दिसंबर 2022 में। अगेन वी वर ऑल अपसेट। सुशांत की सिस्टर ने उनसे डायरेक्ट मीडिया में बात की थी इन प्रदीप भंडारी जी के चैनल पर, और बोला आई एम वंडरिंग व्हाई सीबीआई हैज नॉट कॉल्ड यू, आप तो बता रहे हो। एंड देन हमारे एक वॉरियर है इन दिस मूवमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर, फ्रीज जी है, उन्होंने वो वीडियो भी निकाल ली वेयर रूप कुमार शाह जी इज एक्चुअली इन कूपर हॉस्पिटल एंड टेकिंग सुशांत बॉडी टू द एम्बुलेंस फॉर द क्रेमेटोरियम, टू द क्रेमेटोरियम। CBI has not done anything. They have been silent. They are inactive. और also अमित जी, एक small complaint ये भी है, the family, उनकी जो sister है प्रियंका सिंह, who was leading this movement, she complained to प्रदीप भंडारी कि October 2020 से they have stopped responding to us. So अमित जी, बस ये एक आपको थोड़ा सा वो दे दूं, a brief, and then इतने सारे warriors wait कर रहे हैं, I'll go to them. So basically, it's a case of botched up investigation right at the beginning, if we can say that. Right from the beginning, Amit ji, first that Anil Deshmukh ji जो थे होम मिनिस्टर, who got later, आपको पता होगा, jailed for extortion, and फिर वो परमबीर सिंह, फिर वो सचिन वाजे, same set of people messed it up right from the start. क्राइम सीन को उन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया। एनीबडी इज कमिंग, एनीबडी इज गोइंग, समवन इज टेकिंग समथिंग, कोई बैग में कुछ लेकर रन अवे कर रहा है। देयर इज नो सैंक्टिटी, फोरेंसिक्स नहीं आए, डॉक्टर नहीं आए। एंड राइट फ्रॉम देयर आफ्टर Amit ji, when CBI came in the picture, they started on a very high ground. They did all the right things. But suddenly, Amit ji, something happened in October 2020. They just went silent. They ghosted the family. And then since then, I don't think they've been in touch with the family. And that is something we're all been very upset. But don't we think it's one of the many botched up investigations when we talk about let's say uh, श्रीदेवी का की मृत्यु होती है, उस पे सस्पेंस है। उससे पहले आरुषि तलवार वाला जिस तरह से हुआ था, इट वाज इनिशियली बॉस्ड अप, और उसके आगे अभी तक देख रहे हैं कि देयर इज नो आउटकम ऑफ इट एंड नो क्लियर वर्डिक्ट ऑन दैट वन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई मीन आई होप द जस्टिस इज फाइनली डिलीवर्ड। बट यस, वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट, और ये उस समय से हो रहा है कि ये जो सुपरस्टार्स हैं, ये जो लोग हैं, इनकी आई थिंक सबसे बड़ी जो इनके लिए पनिशमेंट होती है, दैट इज दैट आई मीन दे डोंट गेट देयर स्टारडम, सुपरस्टारडम। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है, और
एक SSR के देखते ही उसके बाद ही हमने देखा कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड भी आया और इस तरह के बहुत सारे चैनल्स और आई मीन जो जो सोशल मीडिया है मेनली उसके थ्रू हम सभी ने मिलके इंक्लूडिंग यू और मतलब यू एक्चुअली लेड इट इन अ वे एंड जो जो ये पूरा बॉलीवुड की गंदगी को जो एक्सपोज किया है आई थिंक दैट इज नाउ वेरी क्लियर के यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी व्हाटसएवर और सिर्फ जो एक अगर अच्छा मटेरियल दिखाएंगे ओनली देन दे विल कम आउट सो आई थिंक दैट हैज that will eventually go a long way in having a long term impact for sure. यस अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन मुझे नजर आती है वो यही है कि इट्स अ कंप्लीटली बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन एंड पॉसिबली इसमें अब जो भी होगा वी डोंट नो आई मीन वी होप द culprits the right culprits get I mean it is first of all recognized as a murder उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है isn't it so अगर वो भी नहीं हुआ है तो where do we go further from there. Thank you, Amit ji. Can we go to Advocate Leela ji? She's from Mumbai High Court, I believe. She's a practicing lawyer over there. तो लीला जी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आपके इनपुट्स क्या हैं इस केस के ऊपर? जी नमः शिवाय सभी को नमस्कार. नानी नोज में नानी और हम लोग सब लोग ही हैं वॉरियर और हम लोग माउंट ब्लैंक पे मिलते भी हैं और जाते भी हैं और सारे बच्चे आते हैं और ब्रेवली शबनम एंड ऑल बहुत ब्रेवली वहाँ पे हम लोग करते हैं. मुझे ये सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी थी. सारा कई बार ये लग चुका है और इसमें हम लोगों ने बात कर चुके हैं लेकिन मुझे एक ही बात कहनी थी कि एक छोटा सा मतलब एक स्टार आता है वो इतनी लंबी जर्नी आते हैं मच्छर कीड़े मकोड़ों की तरह कितने फिल्म स्टार्स आए गए वो कुछ भी ऐसा अचीव नहीं कर सके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जैसे केदारनाथ में SSR की तस्वीर का लगना किसी वॉरियर ने ले जाके वहाँ तक उनको लगाया है. इतनी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग होना और ही वॉज ऑल्सो डिवोटी बहुत बड़े शिव भक्त भी थे. तो एक तो वो मुझे बहुत ये लगा और चाँद से उस इंसान का आप ये देखिए कि वहाँ तक जाके अपनी ज़मीन का मतलब केदारनाथ वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब जहाँ पे लोग मरते हैं जाने के लिए वो वहाँ पे भी पहुँच गया है येन केन प्रकारेण और वो चाँद पे भी जा चुका है. लास्ट नीचे तक बैठे हुए आपके स्पेस के एक आदमी के हृदय में भी बैठा है. मतलब इस आदमी की जर्नी आप सोचिए एक बहुत अजीब सी ये चीज़ हुई है. और चलो ये सब तो है लेकिन इसने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं. इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कितनी चीज़ें कवर की आप सोचिए. इन्होंने कवर की मतलब क्रिकेट को भी ले लिया अनाथ आश्रम वुमन ट्रैफिकिंग टीवी आर्टिस्ट नासा बुक्स सितारों को देखना और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो कि सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली कि कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा. पॉलिटिक्स भी इसमें घसीट के आ गई. फिर अगर बोलें कि अच्छा मुंबई में वो ये थी उस समय अलग गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट भी तो बहुत जल्दी गिरी ना. गवर्नमेंट गिर गई फिर क्या हुआ फिर फटाफट सब लोग अंदर भी गए तो भी ये मैटर क्यों नहीं सुलझा. हम लोगों ने बाइकआउट बॉलीवुड किया तो बॉलीवुड के नीचे तबके के लोग और टीवी आर्टिस्ट और कैमरामैन और थिएटर वाले बोलते हैं हम तो भूखों मर रहे हैं तुम लोगों कैसे बॉयकॉट बॉलीवुड करने से. तो वो लड़का मर गया उसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ. हम तुम्हारे लिए खड़े हो जाएं हम आ जाएं थिएटर में देखने तुम्हारी मूवीज ताकि तुम लोगों के घर चल सके. व्हाट अबाउट दैट पर्सन. उस बिहारी लड़के इस तरह से तो कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा अगर ये चलता रहा तो. अब फिर इन लोगों ने ले लिया टीवी पे कि चलो यहाँ पे तो अमेजोन मूवी ये मूवी वो मूवी करके थोड़ा अपना बिल्डअप किया. इन्होंने उतारा सुनील शेट्टी को क्योंकि वो अन्ना है और वहाँ की मूवीज वो लोग ज़्यादा फेयर हैं और हिंदू संस्कृति की तरफ थोड़ा सा लौटा दिया ताकि अन्ना कुछ कहें योगी जी को कहें और थोड़ा बॉलीवुड को रास्ता खुले. ये सब हम लोगों को दूर से दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो सकता है आज नहीं तो कल ये कॉप अप भी कर लेंगे लेकिन इन बिटवीन
इनका जो घर बिक गए, इनके घर में जो सर्वेंट कम हो गए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो गिर गया है, इनको किस हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये सारी चीजें बहुत कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कि SSR का हुआ और पता नहीं चला, ये तो एक है। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेरी क्लिप्स ऐसी, जिस दिन हुआ था, मतलब 14 को तो हुआ ही नहीं है, ये 13 को ही हुआ था। और नीतीश राणे की पहली जो आई थी न्यूज कि ये टोल नाका का जो CCTV है, वो देखिए, वो गाड़ी जो एंटर हुई थी मुंबई में, जो कि हमको लॉकडाउन में जाने नहीं दिया था, थाना कोर्ट अगर मुझे जाना है तो नो मैडम, फिर हम कार्ड बताएंगे, हम केस बताएंगे, तो हमको अलाउड किया था। आपने उस गाड़ी को वहां से पनवेल से और टोल नाका से, पहला जो नीतीश ने बोला था, सबसे पहले दिमाग में वही घंटी बजती है, वो गाड़ी अंदर एंटर हुई थी मुंबई में। तो ये मर्डर वहां, ये मर्डर है, और ये यहाँ नहीं हुआ है, माउंट ब्लॉक में हुआ नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये नासिक या कहीं पे भी करके यहाँ लाके ये सारा क्रिएट किया गया है। व्हाट अबाउट की? आप बोलते हो ना की नहीं था, की मेकर को लाए थे, तो दरवाजा खुलने के बाद तो लाके चाबी तो रखो सामने, नथिंग। आप पोस्टमार्टम की बात करते हो, जो वहां पे चीजें रखी हुई है, जो रैपर है आपका दवाई का, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि उसमें से कितनी मेडिसिन ले चुके हैं, कितनी गोलियां जा चुकी है, कितनी तारीख का रैपर खरीदा हुआ है, कौन से मेडिकल स्टोर से, कुछ भी नहीं। खाली एक रैपर दिखा दिया हम लोगों को बेवकूफ बनाने को कि ही वाज इन डिप्रेशन एंड ही इज टेकिंग दैट पिल्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दीवा जी, जो कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें। लेकिन ये मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी, और एक कल परसों